नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजयाम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति चित् स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निरुद्ध निराकार। પરમાત્મા પ્રકાશ આચાર્ય ભગવાન યોગીન્દુદેવ રચિત પરમાત્મા પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં પહેલો અધિકાર લગભગ પૂરો થવા આવ્યો છે. એની છેલ્લી ગાથા 123મી ગાથાનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં ગાથા 123 પહેલો શ્લોક કર્યો છે. એના પછીથી આજે ગાથા 123 બીજો શ્લોક આપણે લઈએ છીએ. અહીંયા બીજો શ્લોક લેતા એની પહેલા ઉपोद्घातમાં જે કહે છે તે આ પ્રમાણે છે कि इस प्रकार 31 दोहा सूत्रों का चूली का स्थल कहा. चूली का नाम अंत का है, सो पहले स्थल का अंत यहाँ तक हुआ. आगे स्थल की संख्या से सिवाय दो प्रक्षेपक दोहा करते हैं. ये प्रमाणे 31 सूत्रोथी चूलिका स्थल समाप्त थयुं. चूलिका नाम अंतનું છે તે પહેલા સ્થળનો અંત અહીં સુધી થયો. હવે સ્થળ સંખ્યાથી બાહ્ય એવા બે પ્રક્ષેપકો કહે છે. એટલે જે 123મી છે તે 123મી ગાથા રહે છે, પણ બે શ્લોક વધારે કયા છે એટલે એનું નામ એ રીતે આપવામાં આવ્યા. બે શ્લોકના 123(2) અને 123(3). એટલે પહેલું જે હતું તેને 123(1) કહેવાયું. તો ગાથા 123(2) मनः मिलितं परमेश्वरस्य परमेश्वर अपि मनस द्वयोरपि समरसि भूतयो पूजा समारोपयामि कस्य. ગાથાના અર્થમાં કહે છે કે मनः परमेश्वरस्य मिलितं परमेश्वर अपि मनस, अर्थात विकल्प रूप मन भगवान आत्मा राम से मिल गया, तन्मयी हो गया, और परमेश्वर भी मन से मिल गया. तो द्वयोः अपि समरसी भूतयो, दोनों ही को समरस आपस में एकम एक होने पर कस्य पूजा समारोपयामि, किसकी अब मैं पूजा करूं. अर्थात निश्चय न कर किसी को पूजना, सामग्री चढ़ाना नहीं रहा. सुखे छे विकल्प रूप मन भगवान आत्मा राम से मिल गया, तन्मयी हो गया, और परमेश्वर भी मन से मिल गया. तो दोनों ही को समरस आपस में एक होने पर किसकी अब मैं पूजा करूं. अर्थात निश्चय ने कर किसी को पूजना, सामग्री चढ़ाना नहीं रहा. आ गाथा गुजराती में लईए. मन परमेश्वर शू मळ्યું, परमेश्वर मन लीन, બંને સમરસી એક ત્યાં, કોને પૂજું અભિન્ન. એના અર્થમાં કહે છે કે વિકલ્પ રૂપ મન
ભગવાન આત્મારામમાં મળી ગયું એટલે આત્મામાં લીન થઈ ગયું અને આત્મારામ પરમેશ્વર મનમાં મળી ગયા. તેથી બંને એકમેક થઈ ગયા. તો હવે હું કોને પૂજાની સામગ્રી ચડાવું, અર્થાત કોની પૂજા કરું? જો અહીંયા વિકલ્પરૂપ મન કહ્યું છે એટલે ખરેખર તો વિકલ્પો તો શમી ગયા છે. મન તો શાંત પડી ગયું છે. પોતે જ્ઞાન સ્વભાવી ભગવાન આત્મા એ પોતાના જ્ઞાન દ્વારા જ સ્વરૂપ સાથે એક રૂપ થઈ જાય છે. જ્ઞાન સ્વભાવી ભગવાન આત્મા પોતે જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગ દ્વારા પોતાના સ્વરૂપ સાથે તેમય થઈ જાય છે, તન્મય થઈ જાય છે. અને એમ આત્મા સાથે તન્મય થાય છે તો પછી એમાં આત્મારામ પરમેશ્વર મનમાં મળી ગયા. એટલે કે મન કહેતા અહીંયા તો જ્ઞાનની વાત કરવી છે કે જે જ્ઞાન મન સાથે જોડાયેલું રહેતું હતું એ જ્ઞાન આત્મા સાથે મળી ગયું. એટલે જ્ઞાન અને આત્મા બંને એક રૂપ થઈ ગયા. અહીંયા મન શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે પણ મનનો અર્થ અહીંયા થાય છે જ્ઞાન. મન એટલે જ્ઞાન કેવું છે. વિકલ્પ તો શમી જાય છે. તો બંને એકમેક થઈ ગયા. તો હવે હું કોને પૂજાની સામગ્રી ચડાવું એટલે કોની પૂજા કરું? નિશ્ચયથી તો કોઈની પૂજા કરવાની રહેતી નથી. પોતે પોતાના સ્વરૂપ સાથે તન્મય થઈ જાય છે. દ્વૈત રહેતો નથી, બેપણું રહેતું જ નથી. એવી દશા થાય છે. પછી એ પાછો નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાંથી બહાર આવે, સવિકલ્પ થાય તોય દ્રષ્ટિ તો ત્યાં જ રહે છે, સ્વરૂપ તરફ જ દ્રષ્ટિ રહે છે. એટલે એ વખતે પણ એમ કહેવાય કે મન તો ત્યાં જ રહ્યું છે. ક્યાં રહ્યું છે? આત્મા સાથે જ જોડાયેલું રહ્યું છે. સવિકલ્પ દશામાં વિકલ્પ છે ને, તો પછી એ વિકલ્પ કેવા છે? સ્વરૂપના લક્ષ્ય જ વિકલ્પ છે. અહીંયા આગળ કહે છે, જો કે વ્યવહાર નહીંથી ગ્રસ્થાવસ્થામાં વિષય કષાય તથા દુર્ધ્યાનને દૂર કરવાને અને ધર્મની વૃદ્ધિને અર્થે પૂજા અભિષેક આદિ વ્યવહાર છે, તો પણ વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં સ્થિત થયેલા જીવોને તે સમયે બાહ્ય વ્યાપારનો અભાવ છે. તેથી ઉપરોક્ત ક્રિયાઓ ત્યાં નથી. પૂજા અભિષેકની ક્રિયાઓ ત્યાં નથી. અર્થાત દ્રવ્ય પૂજાનો ત્યાં પ્રસંગ નથી. પણ ભાવ પૂજામાં તન્મયતા છે. અહીંયા એને ભાવ પૂજા કહી દીધી. પોતે સ્વરૂપ સાથે એકમેક થાય, નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં સ્થિત થયો છે તો એને ભાવ પૂજા કહી દીધી. જ્યાં સુધી પોતાના સ્વરૂપનું મહાત્મા આવ્યું નથી ને ત્યાં સુધી આ થતું નથી. જ્યારે પોતાના સ્વરૂપનું મહાત્મા એવું આવે છે કે પોતે સિદ્ધ સમાન છે, પૂર્ણ છે, પવિત્ર છે, એવું ખૂબ મહાત્મા આવે છે અને પછી એનું લક્ષ્ય કરે છે, એવા પોતાના ત્રિકાળી ધ્રુવ વસ્તુનું લક્ષ્ય કરી અને એમાં એક રૂપ થાય છે, ત્યારે પેલું મહાત્મા જે આવ્યું હતું ને એ સફળ થયું. એટલે બીજી રીતે કહીએ તો એમાં જ એને પોતાની પૂજા થઈ જાય છે. એટલે એ ભાવ પૂજા થઈ એમ કહી શકાય. તો આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવે જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે લઈએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ 3 વર્ડ ટુ વર્ડ. એના પાના નંબર 463. 41वां सूत्र चुंडिका थण का चुंडिका अंत का है छेल्लो 100 पहले क्षण का अंत यहाँ तक हुआ
आगे स्थल की संख्या से 2 प्रख्य વધુ हो रहा है, विशेष प्रख्य विशेष 2। वितराग परिणाम में वितरागी परमात्मा स्थित है, हम कहते हैं। राग परिणाम में परदृष्ट स्थित है। चाहे तो त्रिलोक ना नाथ ની ભક્તિ હોય તો શુભ રાગ, શુભ રાગ में પરદૃષ્ટ स्थित है। અને शुद्ध भाव में भगवान स्थित है। समझ में आया? शुद्ध भाव, सुपयोग, शुद्ध उपयोग। शुभ है ये अशुद्ध उपयोग है। शुभ भाव जो भक्ति आदि का भगवान के, ये अशुद्ध उपयोग है। तो अशुद्ध उपयोग में परदृष्ट रहा है, અને शुभ 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 अशुभ थी रहित शुद्ध उपयोग में भगवान तीसरा है। समझ में आया? परमात्मा प्रकार योगींद्र देव दिगंबर संत था, वनवासी। 1300 वर्ष पहले हुआ, 1300 वर्ष में। कुंकुंदाचार पीछे, कुंकुंदाचार की छाप है उसमें। वैसे मुनियों ही कुंकुंदाचार ना श्लोक ने शास्त्रों में आधार बहुत लिया है, भाषण मुनियों। ऐसी कुंकुंदाचार की स्थिति। तिथि तीजे नाम में आया ना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणो, मंगलम कुंकुंदाय। देखो गौतम ने कुंकुन वच्चे तो घना मुनियो मंगलम कुंकुंदाय जैन धर्मोत्सव मंगलम। वितरागी भाव धर्म ये मंगलिक है, राग ये मंगलिक नहीं। समझ में आया? वो मार्ग है। वाद विवाद करे कहीं पार આવ્યો નથી બાપુ। बनारसीदास के समय सन्नाटी में सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। समय सन्नाटी में है, उसमें है। सदगुरु कहे सहज का धंधा, सहजात्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप उसकी दृष्टि ज्ञान ने रमणता, ये सहज का धंधा है। वाद विवाद करे नहीं, हम तो व्यवहार में व्यवहार થી થાય, એ બધી વાદ વિવાદ ની છોડ। समझ में आया? दूसरा श्लोक 123 નો બીજો। मनु मिलियो परमेश्वरम परमेश्वर विमणस बीवी समरसी हो आई पूजो चढ़ाऊ कसो। आगे स्वर्गी से कहते हैं विकल रूपी मन। परमेश्वर मिली तो भगवान आत्मा में मिल गया। जो विकल्प परतर था ये छोड़कर निर्मल परिणति आत्मा साथ एक हो गई। मेरी मन वितराग परिणति आत्मा साथ मिल गई। विकल रूपी मन भगवान आत्माराम में मिल गया। परमेश्वर मिलितम। राग रहित वितराग परिणति परमेश्वर भगवान आत्मा उसमें मिल गई। है और परमेश्वर भी मन में मिल गया। शुद्ध परिणति भगवान में मिल गई, भगवान शुद्ध परिणति में मिल गया। अरे कोने चढ़ाऊ पूजा के सेम कहते हैं।
परमेश्वर भी मन से मिल गया। द्वयोपि दोनों ही को समरस आपस में एक मेक होने पर किसको मैं पूजा करूं? पूजने पूजक भाव में एक हो गया अंदर में। परम वितराग भाव से द्रव्य में मिल गया भाव, અને भगवान પણ परम वितराग भाव में आ गया। समझ में आया? शुद्ध भाव में आत्मा मिल गया और आत्मा शुद्ध भाव में आ गया। परस्पर एक हो गया तो किसको चढ़ाऊं पूजा आवे? पूज्य भगवान आत्मा अपनी पूजनी वितराग परिणति में आ गया। क्या किया? वितरागी पर्याय में भगवान पूर्णानंद है ऐसा ज्ञान आ गया। ये आ गया, उसमें आ गया। समझ में आया? चीज परिणति में नहीं आती, पर चीज की जिस वस्तु है उसका ज्ञान परिणति में आता है। तो भगवान परिणति में आ गया, परिणति ત્યાં ढल गई। भारी बातों बापू આજે ચોથા વાળાની ઈચ્છા આવતી और 5 વાળાના સાધુ છે, 5 વાળાને કે છે વિકટ રૂપી મન એટલે વિકટ ચડી ગયો એમ हो એનો परमेश्वर मिलितम निर्विकल्प दशा हो गई। और परमेश्वर निर्विकल्प में आ गया। निर्विकल्प दशा में भगवान का भान हुआ। शुद्ध उपयोग जब होता है पंच पाप से रहित, तो शुद्ध उपयोग में भगवान भासते हैं। इस शुद्ध उपयोग द्रव्य में मिल गया, नाम एकत्व हुआ। मिल गया ना अर्थ शुद्ध उपयोग है, द्रव्य में एकत्व होता नहीं। शुद्ध उपयोग तो शुद्ध में रहते हैं, पर शुद्ध उपयोग में सारा आत्मा आ गया ख्याल में, तो शुद्ध उपयोग मिल गया उसमें। आत्मा आधा जब ख्याल में आ गया तो आत्मा शुद्ध उपयोग में आ गया। आ गया नो अर्थ शुद्ध उपयोग में उसका ज्ञान आया था। शुभ अशुभ ये उपयोग है। हिंसा, झूठों, चोरी, विषय वासना ये अशुभ उपयोग, અને दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा ये शुभ। दो ही मिलकर अशुद्ध, दो ही मिलकर अशुद्ध। और ये अशुद्ध छोड़कर वितरागी परिणति शुद्ध उपयोग हो, ये शुद्ध उपयोग आत्मा साथे एकाकार का त्या झुक गया ने। शुद्ध तो पर दिशा थी અને શુદ્ધની અંતર દિશા હોય। આવો મારે હો આવો ધમાધમ કરે ને બે હું કશું ને રથયાત્રા ફલાના બહુ અજમેર में બહુ અત્યારે ખેત છે, બહુ સારા દુકાનો બંધ કરી દીધી ને प्रतिमा बनी गई मोटी सारी 1000 तोलानी चांदी ने। और कर्ण छत्र गया माथे देखी पीतल में उतरी ने मारो उसको कि लोगों ने बहु त्रास गया। दुकान बंद कर दी एक दी तो सारा ये बाहर नहीं चीज ऐसी है भाई। आत्मा कोई फिर जाए वो सूरदास में आते हैं। सूरदास है ना, अंधा थी गया था सूरदास मत मारे પછી એક એને લોકો વાત કરે कृष्ण હતા એ दूर हुआ गया, भागे गया उसके हाथ में से। तो सूरदास कहे कि तुम्हें दूर जाओ पर मारा हृदय में से नहीं दूर जावे।
नहीं बात आते ही और आंखों बंद ने हम हाथ चले बंद, हाथ छोड़ने चले गया। भगवान तुम्हें तुम्हारा हमारा शरीर से दूर आ गया, हमारा ज्ञान में तुम्हें दूर नहीं, नदी के अंदर पड़ा है। एम धर्मी का हृदय में तीर्थंकर बिराजते हैं। ઉત્તરાધન આવે છે, બહુ શું તજ્જન આવે છે, તેથી બધું સભામાં કહેતો ને તે રીતે એમ કે બહુ શુદ્ધ જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં પરમાત્મા બિરાજે, એ બધી વાણી નીકળते પરમાત્મા કે એ જ નીકળી એ સાથે સમજ में आया છે ઉપર चरके नहीं। हाँ, मेरा वितरागी भाव सभा सन्मुख हो गया न सभा मेरा वितराग भाव में आ गया। मैं किसको पूजा चढ़ाऊ હવે કોસેठ हाँ वो तो पूजा करवा नवरा कौन है त्या तो उसमें रह सके नहीं तो बात है उसमें आ गया भी पूजा बाद में क्या रही है, लक्ष्य ही दिया नहीं बाल का तो कोई। ये तो अंदर में स्थिर न हो सके तो अशुभ टालने को शुभ भाव आता है। भक्ति, दान दया भाव, अहिंसा सच दत्त भाव, ये सब शुभ भाव है। अहिंसा सच दत्त ब्रह्मचर्य अपरिग्रह प्रवांत महावर्ते शुभ भाव है। वितराग की दशा अंदर में प्रगटे ये शुद्ध भाव है, ये परम अहिंसा है। रागनी उत्पत्ति न होना, भगवान वितराग मूर्ति प्रभु उसके आश्रय से वितरागी परिणति उत्पन्न हो, ये अहिंसा परम धर्म है। पर को न मारना का भाव शुभ व्यवहार पुण्य है, नीचे से तो हिंसा ही है। आखिरी बात है भाई पंडित जी, पूजा किसको अब मैं पूजा करूं, अर्थात निश्चय नहीं कर किसी को पूजना, सामग्री चढ़ाना नहीं रहा। अपनी निर्मल परिणति रूपी सामग्री चढ़ा दिया उसमें। वितराग और कषाय शांत मूर्ति प्रभु पूर्ण केवल ज्ञान मूर्ति विराजे से आया नहीं वो, उसमें है ज्ञानमय, एक ज्ञानमय ज्ञान समझण का पिंड ये है। वो ये दृष्टि में वितरागी परिणति में आ गया, वितरागी परिणति ये बाजू झुक गई, किसको पूजा करूं? पूजा करने वाला मेरा ज्ञान में आ गया, ज्ञान की परिणति में वो जानने में आ गया। मारे गांवों से सत्य बात निश्चय लोगों ने पसंद पड़े ने उડાડી દીધી, વ્યવહાર હેલો હતો વ્યવહાર કરશું પણ નીચે થાય છે, ધૂળે નહીં થાય, બને ધૂળે નહીં થાય એટલે પુણ્ય હારું નહીં બંધાય। સમકીર્તિ ને તીર્થંગોત્ર બંધાય, મિથ્યા દૃષ્ટિ ને તીર્થંગોત્ર હોય નહીં। સમજ में आया? જેને વિતરાગ ભાવ રૂચો છે, કર્મો છે, એને रागनी रुचि न हो, छता उसका राग आता है तो तीर्थंगोत्र बांधे, क्या बलदेव हो जाए, इंद्र हो जाए, कामदम मोक्षदम छे आया ने। ओमकार बिंदु संयुक्त नित्यम जायंती योगिनम, ओमकार भाव स्वरूप होते। ओमकार शब्द ये बे प्रकार, एक आत्मिक एक भूत पुद्गल को आते हैं ना वो ओमकार कन्नड़ मंत्र में हमारे पार बिंदु संयुक्त नित्यम जायंती योगिनम कामदम मोक्षदम चे ओंकार
ओंकार शब्द विशद या के उभय रूप, एक आत्मिक भाव एक पुद्गल को, ओम में वो विकल्प उठता है, पुद्गल का है, और आत्मा की वस्तु है ये मूल ओम है। ओंकार शब्द विशद विशद विशाल या के उभय रूप एक आत्मिक, ये आत्मा पोते ओम स्वरूप है, भाव स्वरूप एक उभय रूप, एक पुद्गल को शुद्धता स्वभाव लिए उठोराय चिदानंद, अशुद्ध विभाव ले प्रभाव जड़मों को, शुद्धता अंदर प्रकट होता जड़ता का क्या नाश हो जाता है, अशुद्धता छोड़ जाती है ना। त्रिगुण त्रिकाल आते हैं वे ध्रुव बात ज्ञाता को सुहात बात नहीं लाग खल को, बना सीधा झुके हृदय ओंकार वास भाव, जैसो प्रकाश शशि पक्ष के शुक्ल को, चंद्र शशि पक्ष नो बीज चंद्र प्रकाश, निर्मल ज्ञान प्रकाश पर पंच नरलोक, तामे शुद्ध ज्ञान प्रदान कर पायो आशा पूर्ण मंत्र नाखन से सीधी सफाई था अपने ओमकार छपाई स्वाध्याय मंदिर में 95 ओम इटाली नो पत्थर है, आईनो जे आरस्पान साधारण है, इटाली नो ऊंचो आवे छे ओम છે ને પણ બાત ઇટાલી નો પથ્થર એ 95 ના ફાગણ માં તેલિયા બને आई तो पहले चलते ना भैया, नहीं कर किसी को पूजा सामग्री चढ़ाना नहीं रहा भावार्थ, जब तक मन भगवान से नहीं मिला तब तक पूजा करता था, तब शुभ भाव होता था। और जब मन प्रभु से मिल गया तब पूजा का प्रयोग नहीं रहा, पूज की पूजा हो गई अंदर में, पूज्य वा भगवान परमात्मा अपना निज स्वरूप, उसकी वितरागी पर्याय से पूजा हो गई, किसका पूजा कर्म हो गई करना हो तो आ है, बाकी બધું हो व्यवहार आता है पर बंद का कारण है, आता है हो व्यवहार, नीचे हो गया तो व्यवहार पूर्ण की तरह होगी, पीछे व्यवहार नहीं आता। समझ में आया, केवल ज्ञानी को कोई व्यवहार है नहीं, एक आनंद तंतु बस, ये कोई को पूजा करे नहीं, कोई को वंदे नहीं आया से क्या खबर बीजा मारी एम के केवड़ी सदवश नो विनय करे श्वेतांबर कहते आयो छापो बात नहीं, श्रीमद ने पण ये छाप रही गई थोड़ी ये वक्त है, केवल ज्ञानी गुरु नो छदमस करे, छदमस गुरु हो तो केवल ज्ञानी विनय करे आत्मसिद्धि माता है, गुरु रया छदमस्त पण विनय करे भगवान ऐसा होता नहीं, आत्मसिद्धि माता है, खबर है नहीं। दूसरा हम तो दूसरा अर्थ किया था 95 में, ठीक आत्मसिद्धि ने अर्थ किया था ना गांधी जी व्याख्यान राजकोट, तो कोई विनय का अर्थ क्या कि पूर्वे गुरु का विनय किया था, केवल ज्ञान में आया तो ये विनय, दूसरा विनय वर्तमान केवल किसका विनय करे पूर्ण आनंद वितराग वंदे भाव छठा गणस्थान तक होता है, विकल्प है क्या पीछे वंदे का होता ही नहीं, साथ में से ये आयु हमारा को श्वेतांबर में आ बात है, केवड़ी विनय करे भगवान नो पाठ दस्युकारी में है, अनंत नाणो भोगो विसंतो पाठे बोडे है, दस्युकारी 9 माध्यम में है, अनंत ज्ञान पामेलो होय पण सदमुस नो विनय न मूके गुरु नो झूठ है केवल ज्ञानी परमात्मा दशा कोनो नहीं करे, અને तीर्थंकर तो जब दीक्षित होता है सदमस में तब भी नमो सिद्धांत बस 5 नहीं, नमो सिद्धांत करके
अंतरचारित्र नव्हतं जात. आणि क्षत्रिय होत आहे बघा, वाणिया नो तीर्थंकर महिलांचे वनिया मोर्चात आहे केवळ पामकर, पण तीर्थंकर નો તીર્થંકર ક્ષત્રિય. એના શરીર ને એના ચાંદણો ને એનો पराक्रम ने ना ज्ञान ने अलौकिक होता है. अनंत तीर्थंकरों सब क्षत्रिय था. अभी व्यवहार नहीं कर ग्रस्त अवस्था में विषय कषाय करूं खोटे ध्यान के रोकने के लिए गृहस्थाश्रम आते ना पूजा, धर्म के बढ़ाने के लिए पुण्य पूजा अभिषेक दान आदि का व्यवहार है आचलते है. व्यवहार नहीं कर ग्रस्त अवस्था में વિષય કર્યો, પણ વિષય જોઈએ, વિષય છે વિષય જોઈએ, એક શબ્દ વધી ગયું છે. विषय कषाय रूप खोटे ध्यान के रोकने के लिए, संकीर्ति को भी धर्म के बढ़ाने के लिए, शुभ भाव अशुभ थी टालने के लिए पूजा अभिषेक दान आदि का व्यवहार है. ऐसा व्यवहार है, पर व्यवहार से नीचे होता है ऐसा नहीं. व्यवहार आता है अंदर, ये साधन बाधन आरोप से कथन है. ये तो कहा नहीं, मोक्ष मार्ग दो प्रकार, सच्चा दर्शन सम्यक दर्शन नीचे सत्या, અને व्यवहार संकेत तो राग को व्यवहार संकेत कहते हैं. ये तो आरोप से कथन है. ऐसे सर्वत्र लक्षण जानना देखा है मोक्ष मार्ग में 7वां अध्याय में. सर्वत्र निश्चय व्यवहार का ऐसा लक्षण है कि अपना आत्मा में अपना शुद्ध स्वरूप की प्रतीति ज्ञान अनुभव होना, ये निश्चय सम्यक दर्शन, और साथ में देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प होना, उसको व्यवहार आरोप करें तो राग. पर निश्चय को सहकर देखीने उपचार से व्यवहार करने में आता है. समझ में आया? मोक्ष मार्ग प्रकाश में મોક્ષ માર્ગ કઈ બે નથી, પણ મોક્ષ માર્ગનું કથન બે પ્રકારે. જ્યાં સાચા મોક્ષ માર્ગનું માર્ગ નિરૂપણ તે નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ. જ્યાં મોક્ષ માર્ગ તો નથી, પરંતુ મોક્ષ માર્ગનું નિમિત્ત છે, સહચારી છે, ઉપચાર છે મોક્ષ માર્ગ કઈ. એ વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ રાગનું કારણ કે નિશ્ચય વ્યવહારનું સર્વત્ર એવું લક્ષણ है. ये साधक है, इन्हें को व्यवहार से साधक है तो बाधक, पर निश्चय साधक उनके आरोप देकर व्यवहार. बहुत सरस 7वां अध्याय है. कारण के निश्चय व्यवहार नो सर्वत्र एवं लक्षण है. बहुत सरस. आ तो जब देखा था पहले बाशी के साथ, बाशी 50 इसे 84 के साल में लख लिया. पुस्तक में रखते नहीं ना, बाद हफ्ते तो बहुत लोग को बचा. 84 की साल में 7वां अध्याय लिख लिया है, लिखा पड़ा है सीस पेन समझे. बहुत अच्छा किया है, पेन से पड़ा है लिख लो. 84 की साल 16 ने 32 48 वर्ष बगेसरा है, बगेसरा ત્યાં लिखा है. बहुत सरल की बात ही बात व्यवहार है, પણ એ उपचार से कथन है, वास्तविक तत्व है नहीं. एम यहाँ व्यवहार आता है, पर व्यवहार से नीचे होता है ऐसा नहीं. व्यवहार जानने लायक बीच में आता है. तो भी वितराग निरुकर समाधि में लीन हुई योगीश्वरों को उस समय में बाह्य व्यापार के अभाव होने से स्वयं ही द्रव्य पूजा का प्रसंग नहीं आता. अंदर ध्यान में पड़े इसको द्रव्य पूजा का प्रसंग है. भाव पूजा में तन्मय है. है ये खुलासा क्या टीकाकार करेगा. समझ में आया? निःशुद्धात्म द्रव्य स्थापित थी मोक्षवती. ये तो हજી છેલ્લો શ્લોક છે ને. 123 આવી ને.
छे पूजाभिषेक दाना व्यवहार वस्ती संस्कृत में है। पछी एक गाथा 123 है, ये तीजी प्रक्षेप है। स्वयं द्रव्य पूजा का भाव, भाव पूजा में तन्मय, भाव पूजा भगवान वितराग पंक्ति है। वितराग मूर्ति प्रभु में लीन हो जाए, ये भाव पूजा है। एवा धर्मात्मा को अंदर स्थिर न हो सके तब व्यवहार पूजा आती है। उसको व्यवहार कहे हो, अज्ञानी को तो व्यवहार ही नहीं। ये तो है क्या, व्यवहार है, ना पालती नहीं। 413 का समय सार व्यवहार मुंडो है। ये तो अनादि रूढ़ व्यवहार मुंड, समझ में आया। निश्चय अणारूढ़, तो 3 शब्द है। 413 समय सार। जिसको आत्मा का ज्ञान सम्यक अनुभव नहीं, वो तो व्यवहार के मुंड है, अनादि रूढ़ है। व्यवहारी अनादि रूढ़ की क्रिया, ये आत्मा की क्रिया क्या है। और निश्चय में अनारूढ़ है, स्वरूप में आरूढ़ नहीं, अंदर व्यवहार में एकला आरूढ़ है। ये तो अनादि मुंड जीव है, हम कहते हैं। हाँ, विशिष्ट भी मिलेगा। परमात्मा प्रकाश 123 बगड़ो बीजो 40-20 नहीं, 23 मणु मिलियो परमेश्वर, परमेश्वर भी मणस, विहिवी समरसी हुआई, पूज चढ़ाऊ कसो। શું ક્યાં શું છે? મનના વિકલ્પ રૂપ ભાવ जब परमेश्वर मिलितम, भगवान आत्मा में मिल गया, એટલે आनंद ज्ञान स्वरूप में पर्याय एकाकार થઈ गई। विकल्प जो मन है वो रहा नहीं, उसका नाम भाव पूजा है। भगवान आत्मा परमेश्वर के परम ईश्वर भगवान की व्याख्या बनावी છે ठिकाने। आम तो भगनो अर्थ लक्ष्मी થાય ને ज्ञान भगनाम योनि में न उत्पन्न थवू ये भगवान, भोगनाम योनि उत्पत्ति में न आवू एनु भगवान, 84 लाख योनि में उत्पन्न थवू नहीं, એને ભગવાન કહેવામાં આવે છે। એવું આ ભગવાન પરમેશ્વર, એમાં મન મળી ગયું એટલે કે મન મરી ગયું, એટલે કે વિકલ્પ છૂટી ગયો અને અંતર જ્ઞાનાનંદમાં એકાકાર हुआ। હવે કે છે मैं किसको पूजा करूं? समझ में आया। परमेश्वर, परमेश्वर भी मन से मिल गया। निर्विकल्प दशा थता परमेश्वर मिला ने परमेश्वर विकल्प दशा में आया। आ करवानुं आया छे आखिर समझाय छे के भगवान परम ज्योति चैतन्य ज्योत आनंद નું ધામ, એમાં મનને મારી નાખી એટલે કે અંદરમાં જતા મન રહેતું। તેથી મનને ડર છે ને, આવે છે ને કે જો અંદરમાં જશે તો મન મરી જશે, એટલે બહાર રહું એ ઠીક છે, તમારું મનનું અસ્તિત્વ તો રહે। मन से जो अंदर में जैसे तो मन ने मारी नाख्या तो
बाकी बाहर भूमू तो मन टकी रखे। आहा, भगवान चैतन्य धातु सर्वज्ञ स्वभावी परमेश्वर, उसमें मन की परिणति नाम राग निर्मल परिणति उसमें मिल गई और परमेश्वर परिणति में आ गया। आहा, विवाह पूजा देवीलाल जी आ देवनी पूजा। आहा, भगवान पूर्णानंद स्वरूप अस्थિપણે પરમેશ્વર જ તો આત્મા છે। પરમ ઈશ્વરના સ્વભાવનો સંપન્ન એ આત્મામાં નિર્મળ પરિણતિ રાગ રહિત મન રહિત અંદરમાં જ પરિણતિ એકાકાર હુઈ। જ્યાં ધ્યાતા ધ્યાન ને ધ્યેયના ભેદ પણ રહ્યા નહીં। હવે से दोनों ही को समरस होने पर देखो समरसी भूतवा बे वितराग भाव रूप हो गया था। राग था वो छोड़कर अंदर में दृष्टि करके स्थिर हुआ तो समरस हुआ, वितराग भाव प्रकट हुआ। आत्मा से एकम एक होने पर कृष्ण पूजा समारोपयामी, किसको मैं पूजा करूं, सामग्री चढ़ावी कोने करूं, हूं तो अब भगवान तो आ गया पूजा में। बाबा निश्चय नहीं कर किसी को पूजना, सामग्री चढ़ाना नहीं रहा। બહારની સામગ્રી તો છે પણ એનો વિકલ્પ હોય છે, અંદરમાં નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં રહી શકતો નથી। ત્યારે એને વિકલ્પ સુધરાગ આવે ત્યારે પૂજા બહારની કરવામાં આવે એમ કહેવામાં આવે છે। પણ અંદરમાં જે આત્મા દેખનારને દેખ્યો, જાણનારને જાણ્યો, ઠરનારમાં ઠર્યો। સ્થિર વસ્તુ ચારિત્ર વસ્તુ છે આત્માની, એમાં ઠર્યો એ નિર્વિકલ્પ આનંદ છે। આ માર્ગ છે, આવો માર્ગ તારી આંખો પૂર્ણ ये શું થાય ये कैसी। जब तक मन भगवान से नहीं मिला तब तक पूजा करता था। सम्यक दर्शन सहित की बात है हो यहाँ। भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञायक भाव जिसमें पर्याय का भेद भी नहीं, ऐसा जो भगवान त्रिकाली आत्मा, उसमें जिसकी परिणति लीन हो गई तो किसकी पूजा करूं कैसे। भगवान से नहीं मिला तब तक पूजा करता था। ये संकीर्ति बात है यहाँ। सम्यक दृष्टि अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप ने अनुभव मां प्रतीति किया है तो उसमें स्थिर न रह सके, तब विकल्प से व्यवहार पूजा करने में ये पण गृहस्थाश्रम ने માટે कैसी मुनि ने नहीं। समझ में आया? ये देखो जब मन प्रभु से मिल गया तब पूजा का प्रयोजन नहीं है। મતમાં આવે છે કે આ સુરદાસ આવે છે ને, સુરદાસ
હનુમતમાં એ શ્રી કૃષ્ણને મળ્યા હતા. શ્રી કૃષ્ણ તો તે સુરદાસ શ્રી કૃષ્ણ હાથ ચાલીને હાથ છોડાવીને કૃષ્ણ ચલા ગયા, ચાલી. सूरदास कहते प्रभु तुम मेरी नजर से बाहर से तो छूट गया, तो मेरा अंदर में से नहीं छूटेगा तुम्हें. मेरा भगवान आत्माओं में मैं लीन हूं, इसमें से ही तुम कृष्ण दूर होगा. कृष्ण तो कृष्ण कहिए कि अज्ञान ने राजवेश ने कृषि ने नाश करे, એને कृष्ण कहिए. ऐसा भगवान आत्मा अपना स्वरूप में रागद्वेष को कृष्ण नाम नाश करीने फरते हैं, कहाँ जाएगा वो? ये भगवान दूर कहाँ से रहेगा? मार्ग ऐसा है भाई, जब तक उसमें मिल गया तब पूजा का प्रयोजन नहीं है. यद्यपि व्यवहार नहीं कर भाषा ऐसा है, सम्यक दृष्टि की बात है. और गृहस्थ अवस्था में मुनि की बात लिया नहीं. गृहस्थ अवस्था में विषय कषाय रूप खोटे ध्यान के रोकने के लिए पर तरफना वर्णनो और ध्यान रोकने के लिए और धर्म के बढ़ाने के लिए, धर्म नाम शुद्धता, शुभ में आते हैं तो शुद्धता थोड़ी बढ़ती है, और शुभ में शुद्धता अल्प है, और शुभ काल में शुद्धता थोड़ी अशुभ गई इतनी बढ़ती है. ये धर्म निवृत्ति हम कहवा आते हैं. समझ में आया? शुभ भाव तो है, ये तो राग, ये पूजा ने काल में शुभ भाव में अशुभ का नाश होता है ना, अशुभ चलते हैं, इतनी शुद्धि होती है. ये धर्म की वृद्धाने के लिए पूजा गृहस्थाश्रम में पूजा होती है. भगवान की पूजा, अभिषेक, और दान आदि का व्यवहार है. विकल्प आता है संस्कृति को, मुनियों को हाथ देना वगैरह. तो भी वितराग निरुकर समाधि में लीन हुई. एवं होवा छतां गृहस्थाश्रमना विकल्पने छोड़ी दईने वितराग निर्विकल्प समाधि में लीन हुई. राग रहित वितरागी प्रणति, राग दा दहे सदा, राग आग दा दहे सदा, साते समामृत सी. राग रूपी अग्नि नो दा ये आत्मा ने दाजे છે, ये आत्माની શાંતિ એમાં દાજે છે. माटी राग आग दाद है सदा, साते समामृत सी. असमर्थ सी बात है. मार्ग बहु अलौकिक છે ભાઈ. આ તો બહારથી પ્રાપ્ત થાય કે પીતરવી ચીજ છે નહીં, પણ વસ્તુ અંતરમાં છે ને, અંતરાત્મા છે ને. अंतरात्मा, उसमें अंतर में एकाकार होना, ये अंतरात्मा की धर्म दिशा है. योगीश्वरों को उस समय में बाह्य व्यापार का भाव नहीं थे. मुनियों तो व्यापार नो बहार नो तो भाव है. क्यारे अंदर में ध्यान में आनंद में आवे है. स्वयं ये द्रव्य पूजा का प्रसंग नहीं आता,
मनिए जब स्वयं द्रव्य पूजा आदि नो विकल्प होता, भाव पूजा में स्तन्मय है। हाँ हाँ हाँ, जिसको मैं आत्मा हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, ऐसा भी विकल्प नहीं। आ दशा वितराग भाव એને ભગવાન મોક્ષનો માર્ગ કહે છે। हाँ हाँ, समझ में आया? ये त्रिविष्णु पग बीजो थयो। તો એ રીતે ગાથા 123 નો બીજો શ્લોક એનો વિસ્તાર પૂરો થયો। પૂજ્ય ગુરુદેવે ઘણા ન્યાય સમજાવ્યા। હવે આ ગાથાનો ત્રીજો શ્લોક આપણે આવતીકાલે લઈશું। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ।